दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला पीरियड पढ़ने जा रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। Introduction to the Anglo-Saxon Age. The Anglo-Saxon Age is the earliest period of English literature. It is also known as the Old English period. English literature begins with this age. This period starts around 450 AD when the Romans left Britain and ends in 1066 AD with the Norman conquest. The Anglo-Saxon age is the earliest period of English literature. इस पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम जो इंग्लिश बोली जाती थी वो आज की इंग्लिश जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो बाद में डेवलप हुई। और बात है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द रोमांस ब्रिटेन became weak and vulnerable. During this time, three Germanic tribes invaded and settled in England: Angles, Saxons, and Jutes. These tribes came from northern Europe and brought with them their language, customs, and warrior culture. The language spoken by them developed into Old English, which is very different from modern English. After the Romans left Britain, three Germanic tribes invaded England. जब रोमांस ने इंग्लैंड छोड़कर चले गए तब इंग्लैंड वीक हो गया। इसी मौका का फायदा उठाकर एंग्लेस, सैक्सन्स और ज्यूस नाम के ट्राइब्स ने इंग्लैंड पर अटैक किया और वहीं बस गए। अब आते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पर। Anglo-Saxon society was tribal and war-based. Life was harsh and full of danger. Wars, invasions, and struggles for survival were common. The king was the central figure of society, and warriors were loyal to him. This system of loyalty between the king and his warriors is known as the comitatus system. एंग्लो सैक्सन सोसाइटी वाज ट्राइबल एंड वार बेस्ड। उस समय सोसाइटी बिल्कुल वार यानी जंग पर आधारित थी। लोग ट्राइब्स में रहते थे और हर वक्त अटैक का डर होता था। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी स्ट्रॉन्ग किंग और ब्रेव सोल्जर्स। कॉमिटेटर सिस्टम कहे तो वॉरियर्स वे आर लॉयल टू देयर किंग। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कॉमिटेटर सिस्टम। इस सिस्टम में किंग और सोल्जर्स के बीच बहुत गहरा रिश्ता होता था। सोल्जर्स अपनी जान दे देते थे किंग के लिए और किंग उन्हें प्रोटेक्शंस और रिवार्ड देता था। इसी को कॉमिटेटर सिस्टम कहते हैं। और बात है रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम पर। Initially, the Anglo-Saxons were pagans or worshipped nature and multiple gods. They strongly believed in fate, which they called weird. Later, Christianity was introduced, and as a result, Anglo-Saxon literature shows a blend of pagan heroism and Christian faith. The Anglo-Saxons believed in fate, which they called वायर्ड। एंग्लो सैक्सन्स मानते थे कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। इस बिलीव को वायर्ड कहते हैं। वायर्ड का मतलब किस्मत कहा जाता है। बाद में क्रिश्चियनिटी आई, इसलिए लिटरेचर में पैगन और क्रिश्चियन दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। Anglo-Saxon literature has the following features: strong emphasis on heroism and bravery, loyalty to the king and tribes, belief in fate means wire, oral traditions like literature was spoken not written, use of alliteration instead of rhyme, serious and dignified tone, themes of war, exile, suffering and death. एंग्लो सैक्सन लिटरेचर फोकस्ड ऑन हीरोइज्म, लॉयलिटी एंड वार। इस पीरियड के लिटरेचर मेनली हीरोज के बारे में है, कैसे वो मॉन्स्टर के लड़ते हैं, अपने लोगों को बचाते हैं और किंग के लिए लॉयल रहते हैं। और बात है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। Most Anglo-Saxon literature was oral and later written down by monks. Major forms include
epic poetry, elegies, religious poetry, riddles, and chronicles. Literature was mostly oral, not written. इस टाइम बुक्स नहीं होती थी, स्टोरीज सुनाई जाती थी और नेक्स्ट जनरेशन को बताई जाती थी। बाद में मॉन्क्स ने लिखे इन्हें लिखा था। अब आते हैं बियोल्फ पर। The Epic of the Age, Beowulf is the most important work of the Anglo-Saxon age. It is an epic poem that tells the story of a hero named Beowulf who fights the monster Grendel's mother, a dragon. Beowulf represents the ideal Anglo-Saxon hero, brave, loyal, and self-sacrificing. The poem highlights heroism, loyalty, fate, and the inevitability of death. Beowulf is the greatest epic of the Anglo-Saxon age. Beowulf इस एज का सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें बियोल्फ इस एज का सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है। इसमें एक हीरो बियोल्फ की कहानी है जो मॉन्स्टर ग्रेंडल, उसकी माँ और एक ड्रैगन से लड़ती है। बियोल्फ एक आइडियल एंग्लो सैक्सन हीरो है, ब्रेव, लॉयल और फियरलेस है। और बात है एंग्लो सैक्सन की पोएट्री स्टाइल पर। एंग्लो सैक्सन पोएट्री डज नॉट यूज राइम, इंस्टेड इट यूज alliteration, same starting sound, caesura, a pause in the middle of a line, kennings, compound expressions like whale, road, for sea. एंग्लो-सैक्सन पोएट्री यूजेस एलिटरेशन इंस्टेड ऑफ राइम। इस पोएट्री में राइम नहीं होता, सेम साउंड से वर्ड स्टार्ट होते हैं जिसे एलिटरेशन कहते हैं, जैसे सी सर्ग्ड। अब आते हैं इम्पोर्टेंट एलिजीज पर। एंग्लो-सैक्सन एलिजीज रिफ्लेक्ट सैडनेस, लोनलीनेस एंड एक्सेल। Important elegies include the Wanderer, the Seafarer, the Wife's Lament. These poems show the emotional and philosophical side of Anglo-Saxon life. The Anglo-Saxons age important elegies age laid the foundation of English literature. अब आते हैं कंक्लूजन पर। The Anglo-Saxon age laid the foundation of English literature. Its literature reflects the life, struggles, beliefs, and values of early English society. Themes like heroism, fate, loyalty, and faith continued to influence later English literature. द एंग्लो सैक्सन एज लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, एंग्लो सैक्सन एज ने इंग्लिश लिटरेचर की नींव रखी। हीरोइज्म, लॉयलिटी और स्ट्रगल जैसे थीम्स यहीं से शुरू हुए, जो बाद के पीरियड्स में भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एंग्लो सैक्सन के एज को पढ़े, जो इंग्लिश लिटरेचर की फाउंडेशन है। इस पीरियड का लिटरेचर हमें एक वॉरियर सोसाइटी दिखाता है, जहाँ हीरोइज्म, लॉयलिटी और रिलीजन सबसे इम्पोर्टेंट थे। बियोल्फ जैसे एपिक का थ्रो हमें पता चलता है कि उस टाइम लोग कैसे सोचते थे और कैसे जीते थे। इसी बेस पर आगे चलकर इंग्लिश लिटरेचर डेवलप हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एंग्लो नॉर्मन एज पढ़ेंगे और देखेंगे कि 1600 के बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस से इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कैसे बदल गई। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।